بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چھونے مونے پیارے سے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم نے باب شروع کرنا ہے، وہ ہے 13واں باب، ہیری پوٹر اور پارس کے پتھر کے راز کا۔ نکولس فلیمیل۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ دوبارہ ایرس کے آئینے کی تلاش میں بالکل نہ جائے، اسی لیے گیبی چوگے کو کرسمس کی باقی چھٹیوں میں اس کے صندوق کی تہ میں لپٹا پڑا ہی رہا۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ کاش اتنی ہی آسانی سے وہ آئینے میں دکھائی دینے والی باتوں کو بھی فراموش کر پاتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ اسے برے خوابوں نے گھیر لیا تھا، اور کوئی رات ایسی نہیں تھی جب وہ عجیب اور دل دہلا دینے والے خواب نہ دیکھتا تھا۔ اس سلسلے کے آغاز نے ہیری کو کافی حد تک پریشان کر ڈالا تھا۔ ان خوابوں میں وہ بار بار دیکھتا تھا کہ اس کے والدین سب روشنی کی دھاروں میں غائب ہو رہے تھے، جبکہ کوئی آدمی تیز آواز میں کہے لگا رہا ہے۔ جب ہیری نے رون کو ان کے خوابوں کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً کہا، دیکھو ڈمبلڈور صحیح کہتے ہیں، وہ آئینہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا ہے۔ ہرمائنی اسکول شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی لوٹ آئی تھی۔ اس نے ان واقعات کو ایک الگ نظریے سے ہی دیکھا تھا۔ ایک طرف تو وہ یہ جان کر بھونچکا رہ گئی تھی کہ ہیری 3 راتیں لگاتار اپنے بستر سے باہر نکل کر پورے اسکول میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ اگر فلچ نے تمہیں پکڑ لیا ہوتا تو؟ دوسری طرف سے اسے بے حد مایوسی ہوئی تھی کہ ہیری کو کم از کم یہ تو پتہ لگا لینا چاہیے تھا کہ نکولس فلیمیل کون تھا۔ انہیں اب یہ امید نہیں تھی کہ وہ لائبریری کی کسی کتاب میں فلیمیل کا نام تلاش کر پائیں گے۔ ویسے ہیری کو اب بھی یقین تھا کہ اس نے یہ نام کہیں پر پڑھا تھا۔ جب اسکول شروع ہو گیا تو وہ ایک بار پھر وقفوں کے دوران 10 منٹ تک کتابیں چھاننے کے کام میں جٹ گئے۔ ہیری کو باقی دنوں سے بھی کم وقت ملتا تھا، کیونکہ کیوڈچ کی مشقیں دوبارہ شروع ہو گئی تھیں۔ ووڈ اس بار ٹیم سے پہلے سے زیادہ محنت کروا رہا تھا۔ اب برف گرنے کی بجائے تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن لگاتار سرد بارشیں بھی ووڈ کے جوش و خروش کو ٹھنڈا نہیں کر پائیں۔ ویزلی بھائی شکایت کرتے دکھائی دیے کہ ووڈ پاگل ہو گیا ہے، مگر ہیری کے خیالات بالکل ووڈ جیسے تھے۔ اگر وہ ہفل پف کے خلاف اپنا اگلا میچ جیت لینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ 7 سال بعد پہلی بار فریکی چیمپئن شپ میں سلیدرن کا ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے اور ایک بار پھر سلیدرن سے آگے نکل جاتے۔ کڑی محنت کرنے کے بعد جیتنے کی امید تو تھی ہی، اس کے علاوہ ہیری دن بھر کی پڑھائی اور کیوڈچ کی مشقوں کے بعد اس قدر تھکاوٹ کا شکار ہوتا کہ بستر پر لیٹتے ہی اس کے گھوڑے بک جاتے تھے، جس کی وجہ سے برے خوابوں کے سلسلے میں بھی کافی کمی واقع ہوئی تھی، جو کہ زیادہ فرحت بخش احساس تھا۔ پھر ایک دن جب موسم بہت زیادہ ابر آلود اور میدان کیچڑ سے لت پت تھا، مشقوں کے دوران ووڈ نے تمام کھلاڑیوں کو بے حد بری خبر سنائی، جسے سن کر ہر ایک کے چہرے پر سراسیمگی پھیل گئی۔ ووڈ اس دن ویزلی بھائیوں پر بے حد خفا تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے پر گوتے مارتے ہوئے بمباری کر رہے تھے اور اپنے بھاری ڈنڈوں سے گرنے کی اداکاری کر رہے تھے۔ مستی مت کرو ویزلی، ووڈ چیخ کر بولا، اس طرح کی حرکتوں سے ہم میچ ہار جائیں گے۔ اس بار سنیپ ریفری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور ان کی پوری کوشش رہے گی کہ بہانے سے گریفنڈر کے پوائنٹس کم کر سکے۔ یہ سن کر جارج ویزلی تو سچ مچ اپنے بھاری ڈنڈے سے گر گیا۔ سنیپ ریفری بن رہے ہیں؟ وہ کیچڑ میں لتھڑے منہ سے چیخا۔ سنیپ کیوڈچ کے میچ میں پہلے کب ریفری بنے تھے؟ اگر ہم سلیدرن سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں تو وہ کبھی انصاف سے کام نہیں لے گا۔ باقی کھلاڑی بھی نیچے اتر آئے اور جارج کے ساتھ کھڑے ہو کر شکایت کرنے لگے۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، ووڈ نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہمیں تو بس صرف اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم صاف ستھرا کھیل کھیلیں تاکہ سنیپ کو ہمارے خلاف کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، ہیری نے سوچا، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی جس کے باعث وہ سنیپ کے آس پاس رہنے پر کیوڈچ نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ ٹیم کے باقی کھلاڑی مشق کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے میدان میں رک گئے تھے، لیکن ہیری وہاں سے سیدھا گریفنڈر کے ہال میں پہنچ گیا، جہاں اس نے رون اور ہرمائنی کو شطرنج کی بازی لگاتے ہوئے دیکھا۔ شطرنج اکلوتی چیز تھی جس پر ہرمائنی ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ ہیری اور رون دونوں کا ہی مشترکہ خیال تھا کہ یہ اس کی واحد کمزوری تھی۔ جب ہیری نے ان کے پہلو والی نشست سنبھال لی تو رون بولا، ذرا 1 منٹ رکو، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ ہیری کے چہرے پر پڑی تو چونک کر بولا، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری حالت بہت خراب دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی دوسرا نہ سن لے اسی لیے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہوئے ہیری نے ان دونوں کو بتایا کہ سنیپ کے دماغ میں کیوڈچ کا ریفری بننے کی خواہش اچانک جاگ اٹھی ہے۔ تو تم کھیلنے سے منع کر دو، ہرمائنی نے جلدی سے کہا۔ کہہ دو کہ تم بیمار ہو، رون نے بات بڑھائی۔ اپنی ٹانگ ٹوٹنے کی اداکاری کرو، ہرمائنی نے صلاح دی۔ اپنی ٹانگ سچ مچ ہی توڑ لو، رون کافی آگے بڑھ گیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، ہیری نے جھنجھلا کر کہا۔ ہمارے پاس کوئی اضافی کھلاڑی نہیں ہے،
अगर मैं नहीं खेलूंगा तो ग्रीफिंडर तो खेल ही नहीं पाएगा। उसी लम्हे नेवल गिरते पड़ते फुदकता हुआ हाल में पहुंचा। कोई नहीं समझ पाया कि वो किस तरह तस्वीर के सुराख में से अंदर आने में कामयाब हुआ था। क्योंकि उसको दोनों पैर बंधे हुए थे, वो फौरन समझ गए कि पैरों पे बांधने वाला जादुई कलमे का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर आपस में चिपक कर रह गए थे। वो ग्रीफिंडर के हाल तक तमाम रास्ते कूदता फुदकता हुआ आया होगा। हरमाइनी को छोड़कर सभी लोग उस पर हंसने लगे। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और उसने अपनी छड़ी घुमाई और नेवल की तरफ झटकी। उसने पैर खोलने वाला जादुई कलमा पड़ा, जिसके बाइस अगले ही पल नेवल के दोनों पैर जादुई बंदिश से आजाद हो गए। वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका जिस्म अभी तक दहशत से बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ था? हरमाइनी ने उससे पूछा और उसे हैरी और रोन के पास ले जाकर बिठा दिया। मेलफॉय, नेवल ने कांपते हुए बताया, वो मुझे लाइब्रेरी के बाहर मिला। इसने कहा कि वो इसकी मशक करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाओ, हरमाइनी ने नेवल को मशवरा दिया। उसकी शिकायत करो। नेवल ने इनकार में सर हिलाया। मैं अपने आप को और ज्यादा मुश्किल में डालना नहीं चाहता, वो सहम कर बड़बड़ाया। तुम्हें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा नेवल, रोन ने गुस्से से कहा। उसे लोगों को अपने कदमों तले रौंदने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन ये तो कोई वजह नहीं है कि तुम उसके सामने झुक जाओ और उसका काम आसान कर दो। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझ में ग्रीफिंडर में रहने के लायक बहादुरी बिल्कुल मौजूद नहीं है। मेलफॉय ये काम पहले ही कर चुका है, नेवल ने रुंधे हुए गले से कहा। हैरी ने अपने चोगे की जेब में हाथ डालकर टटोला और एक चॉकलेटी मेंढक निकाला। ये इस पैकेट का आखिरी मेंढक था जो हरमाइनी ने उसे क्रिसमस पर दिया था। उसने इसे नेवल की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख के लगता था कि वो अब भी रोने ही वाला है। तुम अकेले 12 मेलफॉय के बराबर हो, हैरी ने उसकी तरफ देखकर कहा। बोलती टॉपी ने तुम्हें कहीं और भेजने के बजाय बहादुर ग्रीफिंडर में भेजा था, है ना? और मेलफॉय कहाँ है? स्लेदरिन में, जहाँ मक्कारी और धोखा भरा हुआ है। चॉकलेटी मेंढक का कागज फाड़ते हुए नेवल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शुक्रिया हैरी, मुझे लगता है अब मुझे बिस्तर पर चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें ये कार्ड चाहिए? तुम कार्ड इकट्ठे करते हो, है ना? नेवल ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। जब नेवल चला गया तो हैरी ने मशहूर जादूगर वाले कार्ड की तरफ निगाह डाली। एक बार फिर डंबलडोर, उसने कहा। पहली बार भी मुझे वही मिले थे। हैरी ने गहरी सांस खींचते हुए कार्ड को पलट कर देखा, तहरीर पर नजर डाली और फिर उसने रोन और हरमाइनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक दिखाई दे रही थी। मुझे मिल गया, हैरी ने जोशीले अंदाज में कहा। मुझे फ्लेमेल मिल गया। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, मैंने उसका नाम पहले कहीं पढ़ा था। मैंने उसका नाम रेलगाड़ी में पढ़ा था जब मैं यहाँ आ रहा था। ये देखो, लिखा है, प्रोफेसर डंबलडोर खास तौर पर इन अमूर के लिए बेहद मशहूर हैं। 1945 में उन्होंने तारीख जादू के बेहतरीन जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को निहायत उम्दगी से शिकस्त से दो चार किया। ड्रैगन के खून के 12 नए इस्तेमालात का इंकशाफ किया। अपने साथी निकोलस फ्लेमेल के साथ मिलकर कीमियागरी के मुफीद तजुर्बात से जादू नगरी को फायदा पहुंचाया। प्रोफेसर डंबल की स्रोत दखलूत की मौसीकी और 10 खूंटी का खेल बेहद पसंद है। हरमाइनी एकदम उछल पड़ी जब उसे अपने पहले होमवर्क के लिए पॉइंट्स मिले थे। इसके बाद वो कभी इतनी मसरूर दिखाई नहीं दी थी। यहीं रुको, उसने कहा और वो सीढ़ियां फलांगती हुई सरद रफ्तारी से लड़कियों के कमरे की तरफ भागती दिखाई दी। हैरी और रोन को सिर्फ इतना ही मौका मिल पाया कि वो एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देख सकें, और इतने में ही हरमाइनी हाँफती हुई वापस आ गई। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उसके हाथ में एक भारी भरकम किताब थी। मैंने कभी इसमें देखने के बारे में सोचा ही नहीं, वो मुताज्जब अंदाज में बोल रही थी। मैंने ये किताब कई हफ्ते पहले लाइब्रेरी से दिल बहलाने के लिए हासिल की थी। दिल बहलाने के लिए? रोन ने आंखें फाड़कर पूछा, लेकिन हरमाइनी ने उसे उस वक्त तक खामोश रहने के लिए कहा जब तक वो किताब में से कुछ तलाश न कर ले। उसके बाद उसने किताब के सफ़ात तेजी से पलटना शुरू किए। वो अपने आप से बातें करते हुए बड़बड़ा रही थी। आखिरकार इसे वो मिल ही गया जिसकी वो तलाश कर रही थी। मैं जानती थी। क्या अब हमें बोलने की इजाजत है? रोन ने मुंह बनाकर कहा। हरमाइनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। निकोलस फ्लेमेल, वो ड्रामाई अंदाज में बोली। उनके पास पारस पत्थर है। इसकी बात का इतना असर नहीं दिखाई दिया जितनी उसे उम्मीद थी। क्या है? हैरी और रोन ने एक साथ कहा। क्या वाकई तुम दोनों को पढ़ना नहीं आता? देखो और इसे पढ़ो यहाँ से। उसने इन दोनों की तरफ किताब सरका दी और हैरी और रोन वो पैरा पढ़ने लगे जिसकी निशानदही हरमाइनी ने की थी। वहाँ लिखा था, ज़माने कदीम की कीमिया के मुताले से हमें मालूम होता है कि लोग तब इल्म कीमिया को पारस पत्थर बनाने वाले इल्म की हैसियत से ही जानते थे। अफसानी रवायात के मुताबिक ये निहायत हैरंगेज कुव्वतों का हामिल पत्थर
था। ये पत्थर किसी भी धात को छूकर उसे खाली सोने में बदल देता है और उम्र बढ़ाने वाले खास अक्सीर बनाने के काम आता है, जिसे पीने वाला हमेशा के लिए लाफानी हो जाता है। सदियों से पारस पत्थर के बारे में कई तरह की अफवाहें गर्दिश करती रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा पत्थर एक ही है और वो मिस्टर निकोलस फ्लेमेल के पास है, जो जाने माने कीमियादान और गन्नाई मुहिब हैं। मिस्टर फ्लेमेल, जिन्होंने गुज़श्ता साल अपनी 665वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई है, वो डेवन नामी शहर में अपनी बीवी प्रेनेल, जिनकी उम्र 658 साल है, के हमरा निहायत इत्मीनान और खुश जिंदगी बसर कर रहे हैं। देखो, हैरी और रॉन के पढ़ने के बाद हरमाइनी बोली, 3 सिरों वाला कुत्ता फ्लेमेल के पारस पत्थर की हिफाजत कर रहा होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि फ्लेमेल ने डंबलडोर से इसकी हिफाजत के लिए कहा होगा, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और वो जानता था कि कोई उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, इसीलिए वो पत्थर को ग्रिंगोर से निकलवाना चाहता था। एक ऐसा पत्थर जो सोना बनाता हो और आपको कभी मरने ना दे। कोई हैरानगी की बात नहीं कि स्नेप उसके पीछे पड़ा है। हर कोई यही चाहेगा कि ऐसा पत्थर उसके कब्जे में हो। हैरी ने गहरी सांस लेकर कहा, और कोई हैरानगी नहीं कि हमें फ्लेमेल का नाम जादूगरी में जदीद इर्तिका एक मुताला में नहीं मिल पाया। रोन ने कहा, अगर वो 665 साल के हैं तो इन्हें ज़माना जदीद का फर्द कभी नहीं कहा जा सकता, है ना? अगली सुबह हैरी और रॉन तारीख जादू से महफूज रहने की फ़न की जमात में भेड़ियाई इंसानों के काटने के मुतल्लिक मुख्तलिफ शफाई तरीकों का मजमून कापियों पर नकल कर रहे थे, और वो अब भी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इन्हें पारस पत्थर मिल जाए तो वो क्या करेंगे। जब रॉन ने यह कहा कि वो अपनी ज़ाती क्यूडिश टीम खरीदेगा, तो उसी वक्त हैरी को याद आ गया कि आने वाले मैच में स्नेप रेफरी के फ्राइज अंजाम देने वाला था और वो मैच ज़्यादा दूर नहीं था। मैं ज़रूर खेलूंगा, उसने रॉन और हरमाइनी को फैसला कुन लहजे में बताया। अगर मैं नहीं खेला तो स्लिदरिन के लोग ये सोचेंगे कि मैं स्नेप का सामना करने से डर रहा हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा, अगर हम जीत गए तो उनके चेहरों से मुस्कान उड़ जाएगी, बशर्ते कि वो लोग तुम्हें मैदान में ही ना उड़ा दें। हरमाइनी ने अपना खदशा जाहिर किया। जैसे जैसे मैच का दिन करीब आने लगा, हैरी की घबराहट बढ़ती चली गई। चाहे उसने रॉन और हरमाइनी से जो भी कहा हो, बाकी टीम भी बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श हालत में नहीं थी। फ्रीकी चैंपियनशिप में स्लिदरिन से आगे निकलने का ख्याल तो बहुत शानदार था, किसी ने भी पहले 7 साल में ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन क्या इन्हें ऐसा करने दिया जाएगा जबकि रेफरी इतना जानबदार और मुतअस्सब हो? हैरी नहीं जानता था कि यह उसके दिमाग का वहम था या नहीं, लेकिन वो जहां भी जाता था स्नेप से टकरा जाता था। कई बार तो उसके दिमाग में ये ख्याल भी आया कि कहीं स्नेप उसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा और उसे खुद पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जादुई मुरक्कबात की जमात अब एक तरह की हफ्तावार ज़हनी अजियत की जमात में बदलती जा रही थी। स्नेप हैरी के साथ वहशतनाक बर्ताव पर उतर आया था। क्या स्नेप ये जानता था कि इन्हें पारस पत्थर के बारे में पता चल गया था? हैरी को समझ में नहीं आया कि स्नेप को यह कैसे मालूम हो सकता था, लेकिन कई बार उसे यह एहसास शिद्दत से सताता था कि शायद स्नेप दिल की छुपी बातें भी पढ़ लेता था। जब रॉन और हरमाइनी अगली दोपहर कपड़े तब्दील कराने वाले कमरे के बाहर हैरी की हौसला अफजाई कर रहे थे, तो हैरी जानता था कि वो लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि वो इसे दोबारा जिंदा नहीं देख पाएंगे। आप उसे तसल्ली बख्श ख्याल करार नहीं दे सकते। जब उसने अपनी क्यूडिच की वर्दी पहनी और निम्बस 2000 उठाया, तो हैरी ने वुड के जोश पैदा करने वाली तकरीर का एक लफ्ज भी नहीं सुना। इस दौरान रॉन और हरमाइनी स्टेडियम में नेवल के बिल्कुल साथ वाली नशिस्त पर बैठ गए। नेवल को यह समझ नहीं आ पाया कि वो इतने गंभीर और परेशान क्यों दिखाई दे रहे थे, या वो मैच में अपनी छड़ियां साथ लेकर क्यों आए थे। हैरी को यह बात मालूम नहीं हो पाई कि रॉन और हरमाइनी ने छुप कर पाँव की बंदिश वाले जादुई कलमे की खूब महारत हासिल कर ली थी। उन्हें यह ख्याल मेलफॉय की हरकत से मिला था, जिसने नेवल पर इसका इस्तेमाल किया था। वो बिल्कुल तैयार थे कि अगर स्नेप ने हैरी को चोट पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की, तो वो उसके पैरों पर इस जादुई कलमे का इस्तेमाल करने से जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। भूलना मत, ये इंसानी हरकत में मुस्तमिल अहम बंदिश है, हरमाइनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब रॉन ने अपनी छड़ी अपने बाजू के बालाई हिस्से पर घुमाई। बेफिक्र रहो, मैं जानता हूँ, बार बार मत बताओ, रॉन ने पलटकर जवाब दिया। कपड़े तब्दील करने वाले कमरे में वुड हैरी की तरफ गया, हैरी को एक तरफ ले गया। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता पॉटर, लेकिन आज हमारे लिए सुनहरी चिड़िया को जल्दी पकड़ना जितना जरूरी है, इतना पहले कभी नहीं था। इससे पहले कि स्नेप हफलपफ को ज्यादा फायदा पहुंचाए, खेल ही खत्म कर दो। पूरा स्कूल यहाँ पर है, फ्रेड वीजली ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। यहाँ तक के कसम से डंबलडोर भी मैच देखने आए हैं। हैरी का दिमाग कलाबाजियां खाने लगा। डंबलडोर, उसने कहा, और वो दरवाजे तक दौड़ गया ताकि अपनी आंखों से देख सके। फ्रेड सच कह रहा था, सफेद दाढ़ी पहचानने में किसी से गलती नहीं हो सकती थी। हैरी को इतना इत्मीनान मिला, उसका दिल चाहने लगा कि वो जोरदार कहकहा लगा कर हंसे। वो अब हर तरह से महफूज था।
डंबलडोर अगर देख रहे थे तो स्नेप ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिससे हैरी को नुकसान पहुंचे। शायद इसीलिए जब टीम मैदान में उतरी तो स्नेप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ रॉन भी ये ताड़ चुका था और उसके चेहरे पर फिक्र की सलवटें मासूम हो चुकी थीं। मैंने स्नेप को कभी इतना सड़ा मुंह बनाते हुए नहीं देखा, उसने हरमाइनी को बताया। देखो खेल शुरू हो गया है। आउच! किसी ने रॉन की गर्दन के पीछे कुछ चुभो दिया। रॉन ने फौरन मुड़कर देखा तो उसे मैल्फॉय की सूरत दिखाई दी। ओह माफ करना वीजली, तो मुझे दिखाई नहीं दिए थे, मैल्फॉय ने खबासे से मुस्कुराते हुए कहा। वो क्रैब और गोयल की तरफ देखकर दांत निकाल रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार पॉटर कितनी देर तक अपने भारी डंडे पर टिका रहेगा। कोई शर्त लगाना चाहता है क्या? तुम लगाओगे वीजली? रॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। स्नेप ने अभी अभी हफलपफ को एक पॉइंट दिया था क्योंकि जॉर्ज वीजली ने एक फाउल को उनकी तरफ मारा था। हरमाइनी जिसकी तमाम उंगलियां उसकी गोद में बंधी हुई थी हैरी को लगातार देखने में मसरूफ थी, जो किसी उकाब की तरह मैदान में चारों तरफ चक्कर काट रहा था और सुनहरी गेंद को तलाश करने में मसरूफ था। तुम्हें पता है ग्रीफिंडर टीम के खिलाड़ियों को कैसे मुंतखब किया जाता है? मैल्फॉय ने कुछ मिनट बाद जोर से कहा जब स्नेप ने हफलपफ को बिना किसी वजह के एक और आजाद जरब का मौका दे दिया। वो ऐसे तलबा को मुंतखब करते हैं जिनके लिए इन्हें अफसोस होता है। देखो पॉटर है जिसके मम्मी डैडी नहीं है, फिर वीजली जुड़वा हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तुम्हें भी टीम में होना चाहिए लॉन्ग बॉटम, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। नेवल का चेहरा अचानक सुर्ख हो गया, लेकिन वो अपनी निशित से मैल्फॉय की तरफ घूमा। मैं तुम जैसे 12 लोगों के बराबर हूँ मैल्फॉय, उसने हकलाते हुए कहा। मैल्फॉय, क्रैब और गोयल ऊंची आवाज में कहकहा लगाकर हंसने लगे। उसे बता डालो नेवल, रॉन ने जल्दी से कहा, जो अब भी खेल से अपनी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लॉन्ग बॉटम, अगर दिमाग सोना होता तो तुम वीजली से ज्यादा गरीब होते, और ये बहुत बड़ी बात है, मेलफॉय ने हकारत भरे लहजे में कहा। हैरी की हिफाजत की फिक्र के बाइस रॉन का इर्तिकाज बार बार टूट रहा था। मेलफॉय के इस्तेहज़ाइया जुमलों ने उसके दिमाग को काबू से बाहर कर दिया था। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ मेलफॉय, अगर अब एक लफ्ज आगे कुछ कहा तो। रॉन, हरमाइनी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हैरी! क्या? कहाँ? रॉन हड़बड़ा सा गया। हैरी अचानक एक जबरदस्त गोता लगाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से तमाशाइयों का हजूम बुरी तरह दहशत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। और फिर तालियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। हरमाइनी बेकरारी से उठ खड़ी हुई और उसने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली, क्योंकि हैरी गोली की रफ्तार से जमीन की तरफ चला जा रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है वीजली, लगता है पॉटर को जमीन पर गिरा हुआ कोई सिक्का नजर आ गया है, मेलफॉय ने तंजिया अंदाज में कहा। उसने वाकई हद अबूर कर ली थी, जो कि रॉन के दिमाग को पलटने के लिए काफी थी। रॉन अपनी बर्दाश्त खो चुका था। इससे पहले कि मेलफॉय कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा था, रॉन ने इस पर जस्त लगाई और जमीन पर पटक डाला। फिर वो उसके ऊपर चढ़कर उसे जोदोकोब कर रहा था। इसी लम्हे नेवल कुछ झिझका और फिर वो अपनी नशीब से पीछे कूदकर उसकी मदद करने के लिए पहुंच गया। शाबाश हैरी, हरमाइनी चीखी। वो जोशीले अंदाज में अपनी शीश पर चढ़ गई थी। उसकी निगाहें हैरी पर जमी हुई थी, जो स्नैप की तरफ तेजी से लपकता हुआ जा रहा था। हरमाइनी का जरा सा भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि मेलफॉय और रॉन उसकी नशीस के बिल्कुल नीचे लुढ़के हुए हैं या नेवल। क्रैब और गोयल की तरफ से मुक्कों और चीखों की आवाजें आ रही थीं। ऊपर हवा में स्नेप अपने जादुई भारी डंडे पर इसी लम्हे पलटा और उसने देखा कि सुर्ख रंग की कोई चीज उससे कुछ ही इंच की दूरी से सरसराती हुई गुजर गई। अगले ही पल हैरी ने अपना गोता मुकम्मल कर लिया और उसका बाजू जीत के अंदाज में हवा में लहराने लगा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। सुनहरी चिड़िया उसके हाथ में कैद थी। तमाशाई अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। ये एक रिकॉर्ड था। किसी को भी याद नहीं था कि सुनहरी चिड़िया को इससे पहले कभी इतनी जल्दी पकड़ा जा सका था। रॉन, रॉन तुम कहाँ हो? मैच खत्म हो गया है, हैरी जीत गया, हम जीत गए, ग्रीफिंडर अब सबसे आगे है, हरमाइनी चीख कर बोली। वो अपनी नशीस पर खुशी से उछल रही थी और अगली कतार में मौजूद पार्वती पाटेल को गले लगा रही थी। हैरी अपने भारी डंडे से जमीन पर 1 फीट ऊपर कूद गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वाकई कर दिखाया था। मैच खत्म हो चुका था, जो वो मुश्किल 5 मिनट तक जारी रह पाया था। अब ग्रीफिंडर के तलबा खुशी से नारे मारते हुए मैदान में दौड़ते हुए आ रहे थे। उसी लम्हे हैरी ने स्नेप को अपने करीब जमीन पर उतरते देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था और होंठ सख्ती से भींचे हुए थे। फिर हैरी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, डंबलडोर के मुस्कुराते चेहरे को देखा। शाबाश, डंबलडोर उसे धीमे लहजे में बोले ताकि सिर्फ हैरी ही सुन पाए। ये देखकर बेहद अच्छा लगा कि तुम इस आईने के बारे में फिक्रमंद नहीं हो, अपने आप को हकीकत की दुनिया में वापस ले आए हो, शराब से पीछा छुड़ा लिया, बहुत शानदार। उसी लम्हे स्नेप ने कड़वाहट से जमीन पर थूका।
हैरी कुछ देर बाद कपड़े बदलने वाले कमरे से बाहर निकला। वो अब भारी डंडों के गोदाम की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो अपना भारी डंडा वहां रख सके। उसे याद नहीं था कि इससे पहले भी कभी इतनी ज्यादा उसे खुशी हुई थी। उसने अब सचमुच ऐसा कुछ कर दिखाया था जिस पर वो फख्र कर सकता था। अब कोई नहीं ये कह सकता था कि वो महज नाम की हद तक मशहूर है। उसे शाम की हवा पहले कभी इतनी भीनी और दिलकश नहीं महसूस हुई थी। वो भीगी घास पर चलता जा रहा था। उसने अपने तखय्युल में आखिरी घंटे की याद को ताज़ा किया जो एक खुशनुमा फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने घूम रही थी। ग्रीफिंडर के तलबा उसे अपने कंधों पर बिठाने के लिए भाग रहे थे। रोन और हरमाइनी दूर कूद रहे थे। रोन की नाक से काफी खून बह रहा था मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। नेवल की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी मगर वो भी जीत की खुशी में शामिल था। हर तरफ तालियों का गूंज बरपा था। मसरूर कुन ख्यालात के धारे में बहता हुआ हैरी गोदाम तक गया। वो लकड़ी के दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और उसकी निगाहें लाशऊरी तौर पर हॉगवर्ड के बुलंदो बाला किले की तरफ उठती चली गईं। किले की खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी में सुर्ख दिखाई दे रही थीं। अब ग्रीफिंडर सबसे आगे था। उसने वाकई कर दिखाया था। उसने स्नेप पर साबित कर दिया था। और स्नेप के जिक्र पर एक नकाबपोश शख्स किले की खारजी सीढ़ियों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। जाहिर था वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देख सके, इसलिए वो जितनी तेजी से चल सकता था चलते हुए तारीख जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। ये देखकर हैरी के दिमाग में जीत की खुशी उथल पुथल होकर रह गई। उसने इस आदमी को लंगड़ाती चाल को पहचान लिया था। जब बाकी सभी लोग अंदर बड़े हाल में बैठे खाना खाने में मशगूल थे तो स्नेप चोरों की तरह जंगल में क्यों जा रहा था? आखिर ये हो क्या रहा था? हैरी अपना निम्बस 2000 पर कूद कर बैठ गया और अगले ही लम्हे वो हवा में प्रवास कर रहा था। किले के ऊपर खामोशी से उड़ते हुए उसने देखा कि स्नेप लगभग दौड़ता हुआ तारीख जंगल में घुस गया। हैरी भी उसके ताक़ुब में चल पड़ा। दरख्त इतने घने थे कि उसे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि स्नेप कहाँ गया। हैरी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना था, फिर नीचे की तरफ आया और दरख्तों की सबसे ऊपर वाली शाख को छूने लगा। जब उसे किसी की भिनभिनाती हुई आवाजें सुनाई दी तो वो चौकन्ना हो गया और धीमी रफ्तार से उनकी तरफ चल पड़ा। वो बगैर कोई हलचल किए मोहतात अंदाज में भारी डंडे से उतरा और दरख्त में छुपकर बैठ गया। वो पूरी एहतियात से दरख्त की एक शाख पर चढ़ा और अपने भारी डंडे को मजबूती से पकड़ लिया। वो पत्तों के दरमियान में नीचे झांकने की कोशिश कर रहा था। नीचे सायादार खुली जगह थी जहां स्नेप खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो इस वक्त अकेला नहीं था, प्रोफेसर क्यूरल भी उसके साथ मौजूद था। हैरी क्यूरल के चेहरे के तासुरात तो नहीं देख सकता था मगर वो पहले से बुरी तरह हकला रहा था। हैरी ने यह सुनने के लिए अपनी सारी कुव्वत लगा दी कि उनमें क्या बातें हो रही थीं। नहीं जानता कि आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहते थे सेवरस। मैंने सोचा हमारा यूं छुपकर मिलना ही सूदमंद रहेगा, स्नेप ने बर्फीली सर्द आवाज में कहा। तलबा को पारस पत्थर के बारे में कतई मालूम नहीं होना चाहिए, है ना? मगर सेवरस मैं प्रोफेसर क्यूरल हिकलाए। तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहोगे क्यूरल, स्नेप ने तल्खी से कहा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं नहीं जानता कि आपको क्या। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है, स्नेप गुर्राया। उसी लम्हे एक उल्लू तेजी से चीखा और हैरी हड़बड़ाकर दरख्त से लगभग घिर ही गया, लेकिन उसने मौके की नजाकत पेश नजर अपने आप को फौरन ही संभाल लिया। तुम्हारे जादुई हथियार, मैं इंतजार कर रहा हूँ, स्नेप की आवाज सुनाई दी। वो खुद को गिरने से बचाने के चक्कर में पूरी बात नहीं सुन पाया था। मगर मैं नहीं। ठीक है, स्नेप ने उसकी बात काटते हुए कहा। हम जल्द ही एक बार फिर मिलेंगे, तब तक तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लो और ये फैसला कर लेना कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ है। उसने चोगे को अपने सर पर डाला और वहां से चल दिया। अब तारीकी पूरी तरह फैल चुकी थी लेकिन हैरी देख सकता था कि क्यूरल अब भी खामोश खड़ा था जैसे वो पत्थर का मुजस्मा हो। हैरी, तुम अब तक कहाँ थे? हरमाइनी ने छूटते ही पूछा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, रोन चीखते हुए बोला और उसने हैरी की कमर ठोंकते हुए कहा। और मैंने मेलफॉय की आंख काली कर दी है। नेवल ने क्रैब और गोयल से अकेले निपटने की कोशिश की, वो अब अस्पताल में बेहोश पड़ा है। मैडम पॉम्फ्री का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्लेदरिन को मजा चखाने में अब क्या कसर बाकी रह गई है? हॉल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम शानदार तकरीब का एहतमाम करने वाले हैं और फ्रेड और जॉर्ज ने तो कुछ केक और बाकी सामान बावर्ची खाने से चुरा लिया है। इस सब को अभी रहने दो, हैरी ने हाँफते हुए कहा। चलो किसी खाली कमरे में चलते हैं। कुछ करने से पहले मेरी बात सुन लो। हैरी ने पहले ये इत्मीनान करना जरूरी समझा कि कमरे में शरारती भूत पीस तो मौजूद नहीं है। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद हैरी ने इन्हें बताया कि उसने तारीख जंगल में क्या देखा था।
तो हम बिल्कुल सही थे। वो पारस पत्थर ही है और स्नेप क्यूरल को मजबूर कर रहा है उसे हासिल करने में वो उसकी मदद करे। क्या उसने पूछा कि वो जानता है कि फ्लफी को कैसे अबूर किया जा सकता है और इसने क्रूरल को जादुई हथियार के बारे में भी कुछ बताया। मुझे लगता है फ्लॉफी के अलावा भी बहुत दूसरी चीजें पत्थर की हिफाजत कर रही हैं। बहुत से जादुई हथियार होंगे और शायद क्यूरल ने भी तारीख जादू से महफूज रहने वाले फन का इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होगा जिसे स्नेप को तोड़ना होगा। यानी तुम्हारा मतलब ये है, हरमाइनी ने मुतहैयर अंदाज में कहा। पत्थर इस वक्त तक महफूज है जब तक क्यूरल स्नेप के सामने घुटने नहीं टेक देता। तब तो ये अगले मंगल तक यहाँ से चला जाएगा, रॉन ने कहा।